ਸੋ ਲੱਭ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜੋ ਢੋਲਵਾਹਾ ਜਨੌੜੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਠਹਿਰੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗੜ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰ ਸਕਣ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ 2200 ਕਿੱਲਾ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਘਟਦਾ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 5-6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦਾ ਵਾਇਆ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੀ ਇੱਥੇ 10,000 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੇ ਇਹ ਕਿਲਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 1200-1300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕਿਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ठाकुर द्वारा प्राचीन, जो कि 1150 साल एक प्राचीन ठाकुर द्वारा जी। इस जगह जो एक मंदिर ठाकुर द्वारा, ये महाराजा कपूरथला की ये रियासत है और राजा महाराजाओं के समय का ये रियासत बना हुआ है जी। सबसे पहले श्री महापुरुष जो हुए बाबा रामदास जी महाराज,
उनकी कृपा से नगर का नाम भी बाबा राम टटवाली धाम उन्हीं के नाम से प्रचलित है जी। और बड़े बड़े महापुरुष ने इस जगह विराजमान होकर के संगत ਨੂੰ जोड़े और उस संगत के जोड़ने नाल देश विदेश से भी भक्त इस जगह श्रद्धा विश्वास नाल आते हैं और मनोकामना पूर्ण होता है। उत्तर भारत में सबसे प्रमुख ये ठाकुर द्वारा राम टटवाली धाम जी। जो कि अनादिकाल से उत्तर भारत में प्रचलित है। ये बैरागी संप्रदाय बाबा धुंधुराम द्वारा गद्दी से संबंधित है। हमारे संसार में 52 द्वारा गद्दी है साधु संतों का, उसमें से एक द्वारा गद्दी बाबा रामदास जी का, बाबा धुंधुराम राम टटवाली धाम जी। ये ठाकुर जी शालिग्राम भगवान जो कि 1150 साल प्राचीन विराजमान है जी। और जरा श्री हरि विष्णु भगवान कृष्ण महाराज की भी प्रतिमा राधा रानी की वो भी प्राचीन है। जो आपके सामने वो गद्दी है जो शंख मलमल का, वो महाराजा रंजीत सिंह जी ने महाराज के चरण कमलों में भेंट किए हुए हैं जी। और महाराजा रंजीत सिंह जी ने काफी योगदान इस ठाकुर द्वारे को उन्होंने धन संपत्ति भी लाए थे जो कि सलपरस वगैरह। आज के डेट में ये जो ठाकुर द्वारा है कुछ समय के लिए विकसित हो गई थी, ये दोबारा ठाकुर जी अपनी जगह विराजमान हुए और साधु संत आते रहते हैं जी। और हिंदू सनातन का ये मुख्य केंद्र पंजाब के अंदर है जी। और इनके अनुयायी जट अटवाल गोत्र जी से ये काफी संगत थे जुड़े हुए हैं जी। और 16-17 जठेरे भी हैं पूर्वजों का जी। तो संगत जुड़ी हुई है जी। इस ठाकुर द्वारे का महत्व हमारे उत्तर भारत में अनादिकाल से ये ठाकुर द्वारे प्रचलित इस करके है कि इस जगह जो गद्दी के ऊपर मत्था टेकता है सच्चे दिल नाल उसका मनोकामना अवश्य पूरी होती जी। ये बैरागी संप्रदाय साधु संत का ये गद्दी है जी। और इसके संबंधित 8-10 गद्दी और है जी। जो इसका ब्रांच है गर्दी वाला, टांडा उरमुर, अमृतसर, हालगेट, शारदा बाजार इत्यादि, नकोदर इत्यादि 8-10 ठाकुर द्वारा इस संबंधित ठाकुर द्वारा पंजाब के अंदर जी। जो ये ठाकुर द्वारा है इस गांव में जो आप जी ने जी गांव बताया राम टवाली जी, तो ये सबसे ज्यादा प्रमुख जो ठाकुर द्वारा है ये है या कोई और है? नहीं, ये उत्तर भारत में सबसे प्रमुख और पुरातन और प्राचीन ये ठाकुर द्वारा राम टटवाली धाम। तो बहुत अच्छा जो बाबा जी ने ये बात बताई। मैं अब इनसे ये बात पूछूंगा कि जो महाराजा रंजीत सिंह जी हैं उनका जो बताया जाता है कि कितना सहयोग रहा है और ये जो बैक साइड आप जी को किले वाली जो इमारत दिखाई है वे किस समय की है, इसकी उसारी किसने की? जो आगे वाला आपको मंदिर दिखाया है वो तो अभी नया तैयार हुआ है सारा ही। सो मैं बाबा जी से ये बात पूछना चाहता हूं कि जो जिस तरह आप जी ने बताया कि जो महाराजा रंजीत सिंह जी ने वो क्या पालकी दी है, हाँ, शंख मलमल की सामने पर है। ओके, संगम की जो पालकी दी है पालकी वो यहाँ सुशोभित पड़ी हुई है, हाँ वो भी आपको दिखाएंगे जी जी। और जो सालग्राम है वो प्राचीन, वो भी प्राचीन है और 1150 साल पुरातन जो सालग्राम है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। उत्तरी भारत का ये सबसे प्रमुख मंदिर है। बहुत लोगों को ये इस बारे में जानकारी नहीं है कि इन पहाड़ों की वादियों में इतना खूबसूरत किला और यहाँ जो पुरातन मंदिर सुशोभित है, पूरे उत्तरी भारत का सबसे मेन प्रमुख मंदिर, और बाबा जी उनके संचालक हैं, इस मंदिर को चलाते हैं अपनी देख रेख के अंदर। सो इनका बहुत जो धन्यवाद है इस बात का कि जो हमको इन्होंने ये जानकारी दी है। अब मैं बाबा जी से ये बात पूछना चाहूंगा कि आप किस समय से जहाँ जो
जो कार्यकाल कर रहे हैं, जो सेवा है जो आप निभा रहे हैं, सभी को जो गाइड करते हैं, वो आपका ये तजुर्बा या समय पीरियड कितना अच्छा या फिर कितना बुरा रहा। और इसमें एक बात मैं और ऐड करूंगा कि आप जी मुझे ये भी बताना कि आप जी के सिखों के साथ कितने के रिलेशन जो बने रहे या फिर नहीं बने, या किस तरह से है, ये दो बातें आप हमको जरूर बताएं। ये ठाकुर द्वारा प्राचीन जी जो कि महाराजा रंजीत सिंह जी ने पालकी श्री गुरु महाराज के समर्पण किए थे जी जो ये आप आर्ट कला जो भी आप देख रहे हैं जी उस समय में महाराजा रंजीत सिंह जी का ही देन है, जो कि पुरातत्व दोबारा रिपेयर करके दोबारा सारा कुछ करा करके उनकी भी फोटो सुशोभित है महाराजा रंजीत सिंह जी के ऊपर चित्रकारी। जी, जैसे बाबा जी ने बताया कि उनकी महाराजा रंजीत सिंह जी की जो फोटो सुशोभित है वो मैंने पहले वीडियो में रिकॉर्ड की है, आप ऑडियंस देख भी सकते हो। जो फोटो मैं बाबा जी से एक निवेदन करूंगा कि मैंने जैसे ऊपर भी जब चीज बोली थी कि कुछ लोगों ने आके उस पुरातन चित्रकारी को ऊपर अपने जैसे नाम अंकित किए हुए हैं, किसी ने कोई नाम लिखा हुआ है, जो उसके साथ छेड़खानी की है। इस जो पुरानी जो विरासत वाली हमारी जो हमने जिसको संभाल के रखना था उसको कितना खराब किया है। सो हर समय जो यहाँ के जो संचालक हैं, जहाँ जो सेवा करते हैं वो 24 घंटे ऊपर नहीं रह सकते किले के ऊपर। उन बेचारों को कोई आया कोई गया, चाय पानी सब बाबा जी की देखरेख हेठ में होता है। बाबा जी और सबको ये कहते हैं कि आप ऊपर जाके किला देखो और मन में कोई शंका नहीं रखते। पर हमारे कुछ शरारती अंसर जो नौजवान या फिर लड़के लड़कियां जहां आते होंगे, ऊपर सारी जो पुरातन कलाकृति है उसको बिल्कुल खराब कर दिया है। उसको अब उसके ऊपर कोई रंग नहीं किया जा सकता, या अगर उसको दोबारा मॉडिफाई करेंगे तो वो पुरातन नहीं रह जाएगी। तो इसलिए मैं बाबा जी से ये निवेदन करूंगा कि आप अगर किसी कमेटी को कहकर ऊपर भी जो कैमरों का अरेंजमेंट किया जाए, तो मैं यही कहता हूं कि ये केवल इमारतें नहीं है, ये केवल रंग रोगन नहीं किया हुआ है, ये हमारी विरासत है, इसको इसकी संभाल करना हमारी जिम्मेवारी है। सो ऐसे जो अपने नाम ऊपर लिखते हैं आके उन पर कार्रवाई की जाए, उनको डांटा जाए। सो जो बाबा जी के पास मेरी यही निवेदन है एक। सो इसके आगे बाबा जी की मैं बात सुनता हूं, क्योंकि मैंने जो मेरे दिल में थी मैंने वो बात बताई कि जो भी मेरी वीडियो देखे यहां किला देखने आए, लेकिन ऊपर जो भी किले के अंदर कलाकृति की हुई है, तस्वीरें बनाई हुई हैं, उनके साथ छेड़छाड़ मत करो। क्योंकि इन लड़कों की जेब में मोटरसाइकिल की चाबी होती है, उससे ऊपर कलाकृति के ऊपर अपना नाम लिख देते हैं। पुरातन कलाकृति वो सारी खराब की हुई है। ऐसे पुरातन किला जो ये बाबा जी और जो संचालक हैं जहाँ के सेवादार हैं उन्होंने संभाल रखा है, ठीक है, उसको ना खराब किया जाए। सो बाबा जी से आगे बात करते हुए महाराजा रंजीत सिंह जी की जो बात कर रही थी कि कैसे कैसे जो किले का निर्माण। हाँ जी, पहले तो ये है कि हमारी सनातन धर्म सभा जी, और इस जगह पहली गल तो कोई कमेटी नहीं है। जी जी, दूसरा कि महंत जी ही सब सर्वोपरि हैं। जी जी, और गुरु महाराज से आज तक परंपरा 26 महंत हो चुके हैं यहाँ के ओके, जो कि उनकी समाधियां भी बनी हुई है जी, और सब उनके अनुयायी भी है। मेरा मानना यह है कि धर्म एक है, एक नूर तो सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। धर्म एक है, पंथ अनेक है। ठीक। जब जब हमारे भारत में कोई धर्म की हानि होती है तो ईश्वर भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। आज श्री गुरु महाराज भी उसी के अंश हैं। उन्हीं की कृपा से आज ईश्वर की उनकी पंजाब के अंदर छत्र छाया में जो भी सिखों की पहचान अनादिकाल से जो है वो श्री गुरु महाराज का देन है। वाणी में लिखा है, मानुष के जात सब एक ही पहचानी। ना कोई पंडित है, ना कोई खत्री है, ना कोई राजपूत है, ना कोई अधर्मी है, सब एक है जो ईश्वर का अंश है। ईश्वर गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सब प्राणी चर अचर प्राणी जो भी है ईश्वर के स्वरूप हैं, वो स्वयं। उसी तरह ये उत्तर भारत में प्रमुख ठाकुर द्वारा जो मुख्य संगत नू जोड़ने का माध्यम है कि इस जगह अनादिकाल दा एक पीर है जो अनादिकाल दा पीर है, जो कि पीर हमारे कोई मुसलमान और कोई हिंदू का नहीं है। पीर शब्द फारसी का है और
पहले एक महंत होते थे, महंत के बाद महामंडलेश्वर होते थे, महामंडलेश्वर के बाद वो जगत गुरु होते थे, जगत गुरु के बाद जो संत वो परमहंस होते थे जी। उस परमहंस को पीर कह देते हैं जी। तो इस करके जो है भारत अनादिकाल से जब जब किसी न किसी धर्म की हानि होती है तो ईश्वर कोने कोई स्वरूप धारण करके अवतरित होते हैं और संसार को सुख में ले जाते हैं। उसी इस टेम्पल में जो है जो भी श्रद्धा पूर्वक जो भी आस्था लेकर के आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस जगह जात बिरादरी धर्म मजहब से ऊपर उठ करके जो है ना ठाकुर द्वारा है और प्राचीन है। जी जी। बहुत अच्छी बात है जो आप जी ने बताई, जे बहुत ही ज्यादा जो उत्तम बात है कि हम सभी एक ही हैं, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे। बाबा जी के जो विचार हैं बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी इनकी रूह है, जो बहुत ही बढ़िया हमें इनसे बात करके लगा। मैं बाबा जी से एक बात ये पूछूंगा कि जो पहले जो इस किले के बारे में, क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण जो मैं किले के लिए ही जो वीडियो है जो दुनिया को बताना चाहता हूं कि जहां भी जो 99% जो लोग हैं जो इस स्थान को नहीं जानते वो हमारे वीडियो के माध्यम से जाने। आप बाबा जी एक बात बताएं कि जहां जो भी जहां संचालक होते हैं जैसे आप हैं, तो जे आप वैसे जहां भयंगम रहते हैं शादी आपकी किस तरह ये जरा ठाकुर द्वारा जी बैरागी संप्रदाय और विरत गृहस्थ महंत नहीं बनते हैं। ओके ठीक है। और नहीं गृहस्थ आश्रम अपनाते हैं जी। वानप्रस्थ विच जो है ना ये संत रहते हैं जी। साधुनम दर्शन्यम पुण्यम तीर्थ भूतादि साधव कालीन फलते तीर्थ सद्या साधु समागम। वेद शास्त्र ये बताता है कि साधु जो है ना दूसरों की भलाई करने वास्ते जिंदगी व्यतीत करते हैं, दूसरों के आदर करने वास्ते व्यतीत करते हैं। इस करके साधु के दर्शन करने के फल मिलता है। जहां तक रह गई इस किले का, ये किला अनादिकाल से 1150 साल प्राचीन जो कि रघुवंश राजा हुए हैं कपूरथला के, उनकी देरेख में ये बनवाई गई थी। और इसका बुक भी पंजाब सरकार ने, जरा सतवंत सिंह डायरेक्टर पंजाब भाषा विभाग ने बुक लिखे हुए हैं, वो भी आपको हर एक जगह मिलेगा जी। उसमें काफी विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। रामकेट वाली ढोल बहा जनौरी तकरीबन अपने बजबारे तक जी। मेरा कहना यह है कि पहाड़ी के गोद में जो है महापुरुष हुए हैं और आज भी जो अनादिकाल से सेवक हैं वो मानता कर रहे हैं और उनका मनोकामना पूर्ण हो जी जी। बहुत अच्छा बाबा जी ने बताया कि पहाड़ी की गोद पे जो ये मंदिर है बहुत ही जो ऊंची जो इनकी पदवी है वो बहुत ऊंची है। और आपने बोला था कि दक्षिणी उत्तर भारत का सबसे प्राचीन प्रमुख ठाकुर द्वारा और प्राचीन मंदिर। इसके आगे आप जी को जो सालग्राम है उनके दर्शन भी कराए जाएंगे। इतनी जो हमने बाबा जी से बात की है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार रूह है बाबा जी, पवित्र रूह है, भक्ति वाले हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आप जी का जो कीमती समय हमने लिया इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। जो सालग्राम जी हैं वो तुसी दर्शन कर सकते हो, देख सकते हो कि कितनी खूबसूरती दे नाल अते शरधा दे नाल इन्हां नूं इत्थे विराजमान कीता होया है। मैं बाबा जी नूं निवेदन करांगा कि कुछ लफ्ज सानूं इन्हां बारे दस्सण जो सानूं नहीं पता। ये श्री हरि विष्णु भगवान सालिग्राम भगवान हैं, स्वयं श्री हरि हैं। ये तुलसी वृंदा माता ने श्राप दिया था श्री हरि विष्णु भगवान को जी कि जा विष्णु तू पत्थर हो जा जी। तो ये पत्थर बन गए। और जरे तुलसी का पत्ता जी श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा था कि मैं पत्थर बन जाऊंगा जी जी, और मेरे सिर के ऊपर आप विराजमान रहेंगे। तुलसी के पत्ता पूजा के बाद सालिग्राम जी महाराज का जरूरी है। श्री हरि राधा रमन कृष्ण महाराज जोड़ी प्राचीन जुगल जोड़ी है जी। और एक गुरु महाराज प्राचीन है जी, बाबा रामदास जी हाँ जी प्राचीन है। तस्वीर जो तुसी देख सकते हो कि जो जिस
ਜੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ ਜੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹੋ, आप जी का कितने नंबर पे स्थान है? आप पहले तो ये देखेंगे कि शंख है जी प्राचीन। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। और सज्जा जो कि भारत में कहीं भी नहीं। वाह जी वाह। सो बाबा जी वालों दस्या गया है कि ये प्राचीन शंख ने जो भारत विच कहीं भी नहीं, किसी कोल भी नहीं हैगे और किसी भी मंदिर दे विच जो विराजमान नहीं हैगे, बहुत ही पुरातन जो देखने तो ही लग रहा है। बाबा जी ने मैं पूछांगा बाबा जी इनकी आयु कितनी होगी? हाँ, ये बहुत प्राचीन है, 11.5 साल से तो ये ठाकुर द्वारा है जी। पर ये शंख प्राचीन होते जी, ये प्राचीन शंख बाबा जी ने अपने साथ लेके आए थे जी। वो शंख आपके पास अभी विराजमान है जी। और ये शंख जिस जगह होती है उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं, कोई आपदा विपदा बीमारी नहीं होती। वाह जी वाह। इस करके ये हमारे शास्त्रों में शंख का महत्व आया कि श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा शंख बगैर नहीं होता है। सो बाबा जी ने आपको बताया कि ये देख सकते हैं आप कितना पुरातन और सबसे बड़ा पूरे भारत में ऐसा शंख नहीं होगा जो बाबा जी अपने साथ लेके आए थे, वो विराजमान है और वो विराजमान है। सो इनको देखने से ही लगता है कि कितने हजारों साल ये पुरातन होंगे। सो बहुत ही बढ़िया है। इतना पुरातन इतिहास को संभाल के रखना बहुत बड़ी बात होती है, जो बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक खास बात यहाँ और मैंने नोटिस की है, जो भी यहाँ प्रतिमा है सो वो तकरीबन सभी ही बहुत ही कीमती संगमरमर की जो प्रतिमा यहाँ पे विराजमान हुई हो रखी है। और इनमें से जो ज्यादा जैसे आप देख सकते हो कि कृष्ण महाराज जी की हैं, हनुमान जी की हैं, और यहाँ एक छोटी सी जो गाय की जो प्रतिमा रखी हुई, ये भी बहुत बाबा जी ने बताया कि बहुत ही जो कीमती पत्थर है और बहुत ही कीमती मतलब संगमरमर बाबा जी बोला आप जी ने जी वो है। सो इतने जो पुरातन चीजों को संभाल के रखना बहुत बड़ी बात होती है। ऑडियंस से मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे जो पुरातन इतिहास हैं और इनकी सुरक्षा करना भी, ये बात नहीं कि इनकी सुरक्षा सिर्फ बाबा जी करें, हम सभी का फर्ज बनता है कि जहां जो भी कलाकृति बनी हुई है उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए, ताकि जो कोई भी श्रद्धालु जहां आए और जहां आके नतमस्तक हो बड़े अच्छे से। किसी चीज को जहां छेड़छाड़ मत कीजिए आप, जो जहां के नियम है उनकी पालना करना भी बहुत जरूरी है। सो इसी तरह शालग्राम जी के दर्शन किए और कृष्ण महाराज जी के दर्शन किए और बाबा रामदास जी की जो पुरातन तस्वीर है उनके दर्शन हो गए। सो सभी चीज के दर्शन करके अब आगे जो बाबा जी हमको बताएंगे कि जो प्रोग्रेस आगे मंदिर की है वो सारी आपको डिटेल में बता दी जाएगी। उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां महाराजा रंजीत सिंह जी ने बाबा जी को पालकी भेंट की थी। वो सामने विराज, वो पालकी है जो अच्छी तरह से जे वाली पालकी, हाँ जी, एक बार ये पूरी पालकी जो संगमरमर से बनी हुई हाँ जी, संगमरमर, पूरी संगमरमर से और हाथ से तैयार की हुई है। जो इसका बैक साइड है वो भी मैं बोलूंगा कैमरामैन को दिखाए। सो सारा ही और बाबा जी की जो चरणों की जो संगमरमर से बनी हुई है विषमदास 1945 जी। आगे चलते हैं। ये उत्तर भारत में पीर महाराज प्राचीन बाबा जी से पहले आए, आज 1100 साल पहले आए बाबा जी, पीर आए हैं फिर बाबा जी 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 पहले पीर है फिर बाबा। मैं भी इदां ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਾਈਡਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋ सेवा निभाई जा रही है। सो हवन कुंड देख सकते हो तुसी, जो ये भी प्राचीन ही हवन कुंड है और पुरातन पत्थर लगे हुए हैं। इस पत्थर ना भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, उसे ही तरह प्राचीन जो पुरातन पत्थर हैं। इस तरह एक इमारत होर तुहानूं दिखाते हैं जो बहुत ही पुरातन है ते इस नूं भी तुसी देख सकते हो कि जो पत्थर दे नाल पूरी तैयार की गई है। उस समय दे पुरातन पत्थरां दे नाल जो बनाए हुए कोले भी जो
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਬਣਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਇੱਟਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰਵਜ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗੱਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਚਾਲਕ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਬਿਹੰਗਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ